Assalamu alaikum and very warm good morning to all my dear students of class 3rd. Students, how are you all? Hope you all are fine and also taking care of your health and also completing your CW's work. Students, today we are going to start our new chapter, that is a house like this. This we have already started in our online classes. Okay, now who all are not attending the online class and who are attending, they both have to see this video. My name is Naeem. I live in Srinagar. Since yesterday there is a lot of activity in our school. It will go on for a week. Do you know why there is a camp being held in our school? Children have come from many places for the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. Now students, this is a boy who is living in Srinagar, and yesterday he was telling that from yesterday they are having some activity in the school. Why? Because this will be going for a week. एक हफ्ते तक चलने वाली है. क्यों? क्योंकि there was a camp in their school and the children are going to come from different places to their school. अलग अलग जगह से आएंगे and tents have been put it for them. और वो बच्चे जब आएंगे तो वो कहाँ पे रहेंगे? They will live in the tent. You can see in the picture, आपको पिक्चर में दिख रहा है ग्राउंड के ऊपर उनके लिए टेंट्स लगाए गए हैं. चारों तरफ हिल्स दिख रहे हैं और बीच में टेंट लगाया गया है उनके लिए. And they all will be going to live in this tent. And the children have come from the different places. बच्चे कहाँ से आए हैं? अलग अलग जगह से आए हैं. और कहाँ पे आए हैं? They all have come to the Srinagar. And because they are coming, वो आ रहे हैं, इसीलिए उनके लिए बहुत सारे एक्टिविटी और अरेंजमेंट्स किए गए हैं स्कूल के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, सो डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. हम अलग अलग हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे. जब सब बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो दे ऑल विल बी गोइंग टू गिव द इंट्रोडक्शन, एंड इन दैट इंट्रोडक्शन वी विल कम टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. उस इंट्रोडक्शन में हमें अलग अलग तरीके के हाउसेस के बारे में पता चलेगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपको दिख रहा है ना? देखो आप टेंट्स कैसे लगाए जाते हैं. फॉर मेकिंग द टेंट्स दे आर यूजिंग द a different type of cloth. A special type of cloth is there by which the tents have been made. Okay, so students, there are lot of children. बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, इसलिए उनके रहने का इंतज़ाम कहाँ पे किया गया? एक खुले हुए ग्राउंड में टेंट्स लगा के उनके रहने का इंतज़ाम किया गया है. And now see the next one. What is there in the next one? We have decorated. This is on page number 118. Page number 118 पे ही है बेटा ये भी. We have decorated the school beautifully. Some children have used pieces of cloth to make streamers for the doors. Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. Now the children are coming to their school. बच्चे आ रहे थे उनके स्कूल में, तो उनने क्या किया? स्कूल को बहुत ब्यूटीफुली सजाया, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने सजाया. कुछ बच्चों ने क्या किया? उन लोगों ने क्लॉथ यूज़ किया. क्या बनाने के लिए? दरवाजे को डेकोरेट करने के लिए. स्ट्रीमर्स, उसको स्ट्रीमर्स बोला जाता है, वो बनाया कपड़े से. सम हैव मेड पोस्टर्स. कुछ बच्चों ने क्या बनाया? पोस्टर्स बनाए, अलग अलग टाइप के पोस्टर्स. उसमें कुछ थॉट्स लिखे और कुछ नॉलेज वाली चीज़ें उनने लिखी. एंड विद द हेल्प ऑफ आलमंड शेल्स. आलमंड मीन्स बादाम के जो छिलके होते हैं ना, उससे उन लोगों ने उसको पोस्टर्स को बनाया. देन वाइल अदर्स हैव मेड रंगोलीज. कुछ बच्चों ने क्या बनाई? रंगोलीज बनाई. काहे से? सूखी हुई पत्तियों से और सॉ डस्ट से, जो अलग अलग टाइप की जो डस्ट आती है ना कलरफुल, उसको यूज़ किया. नाउ कम ऑन पेज नंबर 119. Today is the first day of the camp. We are very happy in the morning. We all got together and sat down on the ground in a circle. Each of us introduced ourselves and spoke about where we come from and what we like to eat. Children brought pictures of their families and their homes. Everyone spoke about their homes. Bhupe's group was the first to talk. Now today is the first day of the camp. आज कैंप का पहला दिन है. सब बहुत खुश थे. इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर, मतलब सब के सब एक साथ बैठ गए सर्कल बना के ग्राउंड के ऊपर, और सब ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया.
कैसे इंट्रोड्यूस किया? हाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड बाय about what we came from, where they have come from, they have tell their name, from where they have come from, and what they like to eat. Children brought pictures of their family. Now what the children who have come from the other places, they have brought their pictures of their families and also the pictures of their homes. उनके घर की भी pictures लेके आए थे. Everyone spoke about their home. सबने अपने घर के बारे में बताया कि किसके घर में कितने members हैं, कौन क्या करता है. They have told about that. Now Bhupen group. Now the one boy is there in that camp whose name is Bhupen. तो Bhupen group was the first to talk. सबसे पहले किसके ग्रुप ने टॉक किया, बात की, किसने इंट्रोडक्शन दिया? Bhupen के ग्रुप ने दिया. ओके, Bhupen introduced himself and said. अब Bhupen ने अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया. Now Bhupen have started giving the introduction. Students, what you have to do, you have to watch the videos. आपको videos watch करना ही है बेटा. आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करके videos watch करोगे तो उससे क्या होगा, आपको कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. You will understand the thing very nicely. Okay student, so I must prefer all the children who are attending the online class and who are not attending. जो नहीं attend कर रहे हैं उनको तो video देखना ही है, but who are attending the online classes, they must also see the video. So it will be helpful to you people. Okay students, if anything has missed, कभी आप late join हुए क्लास में, कुछ मिस हो गया आपसे, एक्सप्लेनेशन आपसे मिस हो गया, तो आप ये वीडियो देख के उस एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हो. Now see here on the screen you will see Bhupen is giving the introduction of himself. Bhupen अपने बारे में introduction दे रहा है. I have come from Molan village in Assam. It rains heavily in our place. Hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillars. The inside of our house are also made of wood. Now what did the Bhupen said that he has come from a Molan village in Assam. आसाम में एक विलेज है मोलान, वो वहाँ से आया है. उसके एरिया में हेवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. तो हाउसेस क्यों, इसलिए उनके एरिया में हाउसेस कहाँ बनाए जाते हैं? 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड. उसको 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे बनाया जाता है. दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स. और वो काहे पे बनाए जाते हैं? मोटे मोटे बैम्बू के पिलर्स होते हैं ना, उसके ऊपर बनाए जाते हैं. आपको दिख रहा है ना पिक्चर में, आप देख सकते हो. देखो आप, नीचे पिलर्स दिए हुए हैं मोटे मोटे, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? उसके ऊपर घर बनाया हुआ है. द इनसाइड्स ऑफ हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड. और घर का जो अंदर का हिस्सा होता है ना, उसको भी लकड़ी का ही बनाया जाता है. ओके स्टूडेंट, यू कैन सी इन द पिक्चर. आप पिक्चर में देख सकते हो कि वुड का हाउस बना हुआ है पूरा. उसका जो ऊपर का जो रूफ है वो भी स्लोपिंग बनाया गया. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन इज देयर, why are houses made on bamboo pillars where Bhupen lives? ऐसा क्यों है कि जहाँ भूपेन रहता है वहाँ पे जो घर है वो पिलर्स के ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? ओके स्टूडेंट्स, उनको क्यों बनाया जाता है? दिस इफ़ यू हैव नॉट रिटन, अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको आप इसमें से देख के लिख सकते हो. ओके, बिकॉज इन हिज विलेज इट रेन्स हैवीली एंड द लैंड इज़ ऑलवेज फुल ऑफ वाटर. क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उसके गांव में, विलेज में, मोलान में हमेशा बहुत तेज़ बारिश होती है. एंड द लैंड इज़ ऑलवेज फुल ऑफ वाटर. और जो लैंड होता है, ज़मीन होती है, वो पानी से भरी हुई होती है, तो वो नीचे घर नहीं बना सकते हैं. ओके स्टूडेंट, इसीलिए वो लोग पिलर्स के ऊपर घर बनाते ताकि उनके घरों में पानी भर ना सके. नाउ कम ऑन पेज नंबर 120. What kind of roof do these houses have? Why are they made like this? अब इनके घरों में इस रूफ ऐसे क्यों बनाए जाते हैं और वो काहे के बने होते हैं? अब कैसे रूफ्स होते हैं उनके? These houses have slanting roof, मतलब ऐसे टेढ़े वाले रूफ्स होते हैं. क्यों? So that the water may not collect on roof, जिससे कि पानी जो है वो रूफ पे, छत के ऊपर कलेक्ट ना हो सके. नेक्स्ट वन इज, हाउ डज वन एंटर दीज हाउसेज? लोग इस घर में एंटर कैसे होते हैं? वन एंटर दीज हाउसेज बाय स्टेप्स और लेडर्स. वो कैसे एंटर होते हैं?
सीढ़ियों से, लेडर्स होती है ना, लकड़ी की सीढ़ी बनी होती है, वो उससे एंटर होते हैं. At night, the ladder is removed from these houses. Can you tell why? रात के समय ये ladders को क्यों हटा दिया जाता है? You have to give the reasons. Ladders are removed because thieves or wild animals may not enter the house. Ladders इसलिए हटा दिए जाते हैं ताकि चोर या जंगली जानवर घरों के अंदर ना घुस सके. Okay, student. So now you understand, and students who all are joining the online classes, ऑनलाइन क्लास जो ज्वाइन कर रहे हैं और किसी का भी ये वर्क बाकी रह गया है लिखने का, तो अब आप इसमें से वीडियो में से देख के कंप्लीट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट इज देयर. नेक्स्ट गर्ल इज चमेलीज. नाउ दिस इज चमेली. चमेली का टर्न आया. व्हाट शी इज सेइंग, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया. एट आवर प्लेस इट रेन्स हैवीली and snows as well. When it is very cold, we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. उसने क्या बताया कि मैं कहाँ से आई हूँ, मनाली से आई हूँ और वो हिली एरिया है. और at our place it rains heavily. हमारे प्लेस में बारिश बहुत ज़्यादा होती है. and snows as well, और बर्फ़ भी गिरती है साथ पे. and when it is very cold, जब बहुत ठंड होती है तो हमें धूप में बैठने का मन करता है. सूरज की जो किरणें आती है ना, हमारा उसमें बैठने का मन करता है. और हमारे यहाँ घर काय के बने हुए हैं, स्टोन और वुड के, पत्थर के और लकड़ी के घर बने हुए हैं. ओके स्टूडेंट, तब आपने देखा भूपेन का घर काय पे बना हुआ था. भूपेन का घर पूरा वुड का बना था और वो किसके ऊपर बना था, बैम्बू के पिलर्स के ऊपर बना था. ओके, और वहाँ भी हैवी रेन होती है. अब यहाँ पे मनाली में भी हैवी रेन होती है और साथ में बर्फ़ भी गिरती है, पर तब भी इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ कैसे बनते हैं घर, काय के बने होते हैं. इट इज़ मेड ऑफ वुड और स्टोन, पत्थरों के और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं. और यू कैन सी इन द पिक्चर, अब आप पिक्चर में देख सकते हो, आपको दिख रहा है ना कि चमेली के घर का भी जो रूफ़ है वो कैसा है, स्लैंटिंग रूफ़ है. मतलब उसमें से ईजिली बर्फ़ या पानी आराम से नीचे जा सकता है, वो ऊपर कलेक्ट नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, डिड यू गॉट इट? अब आपको समझ में आया ना. अभी हमने दो तरीके के हाउसेस के बारे में पढ़ लिया. एक हाउस जो है पूरा वुड का बना है और पिलर्स के ऊपर है. दूसरा हाउस है वो काय पे बना हुआ है. इट इज़ मेड ऑफ स्टोन और वुड, वो लकड़ी का और पत्थर दोनों का बनता है. ओके, नाउ सी ऑन पेज नंबर 121. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस? चमेली का हाउस कहाँ पे है? चमेलीज हाउस इज़ इन हिली एरिया कॉल्ड मनाली. चमेली का घर हिली एरिया में है, जहाँ जिस जगह का नाम क्या है, मनाली है. व्हाट इज़ द सिमिलरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस? चमेली के और भूपेन के हाउस में क्या सिमिलरिटी है, क्या चीज़ सेम है उनके घर में? तो चमेली एंड भूपेन्स हाउस हैव स्लैंटिंग रूफ. उनमें क्या है, स्लैंटिंग रूफ है. उनके जो घरों की जो छतें हैं वो तिरछी हैं ताकि उसमें पानी रुके ना, पानी इजीली निकल जाए. हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज? अब जो रूफ हैं भूपेन के और चमेली के घर के जो रूफ हैं वो कैसे हेल्प करते हैं? स्लैंटिंग रूफ्स डिड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट ऑन रूफ्स. अब जो स्लैंटिंग रूफ होते हैं वो पानी को कलेक्ट नहीं होने देते हैं. किसके ऊपर? छत के ऊपर, रूफ के ऊपर पानी को वो कलेक्ट होने नहीं देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वे द रूफ्स आर हेल्पफुल इन बोथ द एरियाज. उनके दोनों के एरियाज़ में इस तरीके से जो रूफ है वो हेल्पफुल होता है. ओके स्टूडेंट्स, अप टिल हियर वी हैव रीड अबाउट द भूपेन एंड चमेली. हमने भूपेन और चमेली दोनों के बारे में पढ़ा, दोनों के हाउसेस के बारे में पढ़ा, दोनों के एरियाज़ किस टाइप के हैं वो भी पढ़ा हमने. वी हैव डन द टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑल्सो. हमने उनकी जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, उनके एरिया से और घर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने हमने उसके आंसर्स लिखे. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू पीपल हैव टू कंप्लीट योर टेक्सचुअल एक्सरसाइज. आपको ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बेटा, क्योंकि इसमें से भी मैं आपको एग्ज़ाम में पूछ सकती हूँ. तो आपने लिखा होगा तो ही आप इसको लर्न कर पाओगे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिताली एंड अंजू. अंजू और मिताली के बारे में हम बात करेंगे. मिताली and Anju have come from Delhi. They showed pictures of Delhi to everyone. In one picture seeing very high buildings, Bhupen said,
ओ सच टॉल हाउसेस, हाउ डू यू क्लाइंब अप। अब मिताली और अंजू, अब थर्ड क्या कौन है, मिताली और अंजू हैं। ये कहाँ से आई है, दे हैव केम फ्रॉम द दिल्ली एंड दे हैव ब्रॉट द पिक्चर्स ऑफ द दिल्ली की वो पिक्चर्स लेके आई हैं। और एक पिक्चर में व्हेन दे वर शोइंग द पिक्चर्स, इन वन पिक्चर देयर वाज अ वेरी हाई बिल्डिंग, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। आप देख रहे हैं ना, आपको सामने पिक्चर्स में दिख रहा है हाई बिल्डिंग्स दिख रही हैं। तो भूपेन ने क्या बोला, ओ सच टॉल हाउसेज, अरे तुम्हारे यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे घर होते हैं। हाउ डू यू क्लाइंब अप, तुम घर के अंदर कैसे जाते हो, ऊपर चढ़, घर के अंदर कैसे चढ़ते हो। सो ओके स्टूडेंट्स, अप टिल नाउ वी हैव रीड अबाउट द मोलान विलेज। भूपेन कहाँ से है, विलेज से है। चमेली कहाँ से है, शी इज़ फ्रॉम मनाली, इट इज़ ऑल्सो अ स्मॉल प्लेस, वो भी एक छोटी सी जगह है। बट दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली जो है वो बड़ा सिटी है। तो वहाँ पे क्या है, हाई बिल्डिंग्स है, ऊंची बिल्डिंग्स हैं, जो भूपेन ने देखी नहीं थी कभी भी। तो उसको क्या लगा कि बड़ी सिटीज़ में बड़े बड़े घर होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ही वॉज शॉक्ड, उसको सरप्राइजिंग, इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर हिम, उसके लिए एक सरप्राइजिंग था कि वो क्या देखा उसने कि इतने ऊंचे हाउसेस, और उसको ये भी नहीं मालूम था कि इतने मतलब जो बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स में चढ़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं या हम ऊपर कैसे जाते हैं। तो उसने क्या पूछा कि तुम इस घर में क्लाइंब कैसे करते हो, चढ़ते कैसे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 122 में देखो आप, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बच्चे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में कैसे जाते हैं। तो पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बाय लिफ्ट, वो काहे से जाते हैं, लिफ्ट से जाते हैं। लिफ्ट आप सबको पता है ना। New Delhi is the capital of India. People from villages and towns come to big cities like Delhi in search of work. These people often settle in the city. There are a large number of people living here and the space is less. Many people do not have houses at all. They have to live in slums and many people do not have that either. People sleep wherever they find place, on the road, on the footpath, at the station. Indeed, shelter is a major problem in big cities. Now students, न्यू दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली क्या है, किसका कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल है। और पीपल कहाँ से आते हैं वहाँ पे, टाउन्स और विलेजेस से, गांव से और छोटे छोटे कस्बों से आते हैं, काहे के लिए, सर्च ऑफ वर्क, काम करने की तलाश में आते हैं। देन दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी, ये क्या करते हैं, सिटी में ही रुक जाते हैं। एंड देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर इन द स्पेस इज लेस, मतलब बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे रहने के लिए आ जाते हैं और जगह कम है। तो बहुतों के पास में घर नहीं है, तो वो कहाँ रहते हैं, स्लम एरिया में, झोपड़पट्टियों में रहते हैं। और कुछों के पास तो वो झोपड़पट्टी भी नहीं है, तो वो कहीं भी सो जाते हैं, रोडों में, फुटपाथ पे, स्टेशंस में। सो द शेल्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, मीन्स घर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बड़ी सिटीज़ में। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दिस इज़ काशीराम एंड ही इज़ टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ। I have come from Rajasthan. Rainfall is very scarce in our area. It is very hot too. We live in mud houses. The walls of the houses are very thick. These walls are plastered with mud. The roofs are made of thorny bushes. Now this boy Kashiram, what he is saying, that I have come from Rajasthan and rainfall is very scarce. Rainfall बहुत कम होती है हमारे यहाँ, and it is very hot too, और बहुत गर्मी भी पड़ती है। हम काहे में रहते हैं, what he told, we are living in the mud houses, मिट्टी के घर में रहते हैं। The walls of the houses are very thick, और जो घर की हाउसेस की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो बहुत थिक होती हैं, और उनको हम काहे से प्लास्टर करते हैं, मड से, मिट्टी से। और जो रूफ्स होते हैं वो काहे के बने होते हैं, थॉर्नी बुशेस, कांटेदार जो बुशेस होते हैं ना, उससे बने होते हैं। नाउ सी ऑफ पेज नंबर 123, in the same way all the groups spoke about their houses. After the introduction, a cultural program was held. The children performed various dances, they sang folk songs in their own languages. Everybody had kahwa with almonds and cardamom. We really enjoyed ourselves. इन द सेम वे, इस तरीके से सब ग्रुप ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने हाउसेस के बारे में बताया। दे हैव गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ देयर कल्चरल प्रोग्राम, उनकी तरफ कौन से
फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन से कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। द चिल्ड्रन हैव परफॉर्म द वेरियस डांसेस, उनके एरिया में जो डांसेस होते हैं वो उनने किए। दे सैंग द फोक सॉन्ग्स, उनके एरिया में कौन से गाने गाए जाते हैं वो भी उनने किया अलग अलग लैंग्वेजेस में। उसके बाद सब ने क्या किया, एवरी वन इज़ टेकन द कहवा। कहवा क्या होता है, इट इज़ अ ब्लैक टी विच इज़ एवरी वन इज़ ड्रिंकिंग इन द कश्मीर हिली एरियाज। दे आर टेकिंग द कहवा with almonds. Almonds means badam and cardamom. It is a type of a dry fruit, and they all enjoyed very much. In the evening, we all went to the Dal Lake. We saw a houseboat. We sat in shikara, and some children moved the oars. Now, शाम को वो सब कहाँ गए थे, डल लेक पे गए. It is a famous lake of श्रीनगर, और वहाँ पे उनने क्या देखा, they saw the houseboat and they all sat in the shikara and they moved the shikara. और उन लोगों ने चार चिनारी भी देखी which was surrounded by the blue mountains. वहाँ के जो माउंटेन्स थे वो ब्लू कलर के थे. Now you can see the question is there, how is houseboat different from other houses? हाउसबोट जो है दूसरे हाउसेस से अलग कैसे होती है. हाउसबोट कैन मूव इन वाटर बट अदर हाउसेस कैन नॉट एज दे आर मेड ऑन लैंड. हाउसबोट पानी में मूव करती है और दूसरे हाउसेस जो होते हैं वो लैंड पे बने होते हैं तो वो मूव नहीं कर सकते. Now see, there is a match the following on page number 124. The pictures is given to you. That is igloo, then houseboat, then multi-story building, tent and hut is there. Okay students, so you have to do the matching work. मैंने पेंसिल से उसको मैच करके आपको दिखाया है, तो आपको भी इसको देख के मैच कर लेना है. हट को हट के साथ में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज ऑन थर्ड नंबर, देन हाउस ऑफ स्नो एंड इग्लो इज द फर्स्ट नंबर, हाउस बोट is on second number, and then hut is on the last number. Okay students, here we have completed a chapter. Have a nice day. Thank you. Allah Hafiz.